Yes, Hi sir. Kusum, how are you? I'm fine. You are fine. Okay, Kusum, what are you doing right now? आप क्या कर रहे हो अभी, कुसुम? Nothing. Nothing. So you are not studying anything right now. मेरा मतलब है कि आप अभी पढ़ाई में क्या कर रहे हो? कुछ पढ़ रहे हो या जो है कॉलेज में हो, क्लासेस में हो, क्या कर रहे हो अभी? या ग्रेजुएशन कर रहे हो या अभी इंटर में हो? किस क्लास में हो? सर मैं क्लास में हूँ. 6th क्लास में हो? Yes. ओके, आप इतनी जल्दी सीखना चाहते हो? मतलब कितनी कम एज में सीखना चाहते हो? Yes. ओके, चलो, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो आपको कुछ भी पता है आपको इंग्लिश के बारे में? लाइक आपको जैसे आप रीड कर लेते हो अच्छे तरीके से? Yes. ओके, और आप बोल भी लेते हो? Yes. ओके, तो आप हम थोड़ा इंग्लिश में बात करें एक दूसरे से? Okay. आप मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दोगे इंग्लिश में लेकिन? Okay. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू प्लीज टेल मी योर नेम My name is Bhavya. एंड वेयर यू आर लिविंग राइट नाउ? Your voice is not come. My voice is not clear to you. Just a minute. Now I think I'm audible. Yeah. Okay. So can you please tell me where you live? मेरा मतलब आप कहाँ रहते हो? Dwarka. द्वारका. Okay. And what is name of your parents? What is name of your father? My father name is Rohit Kumar and my mother name is Kusum. And your father is a businessman or he's working somewhere? Working somewhere. Working somewhere. Okay, that's very nice. And just tell me, Bhavya, what you want to do in future? Doctor. You want to be a doctor? Yes. Okay, very nice. So, what are you doing for being a doctor? आप डॉक्टर बनने के लिए क्या कर रहे हो अभी? मतलब कि आप कुछ पढ़ाई करने आपने शुरू की है, नहीं की है, या अभी ये सिर्फ आपका एम ही है? मैं अभी. अभी सिर्फ एम है. ओके, नो इश्यूज, नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, सो अब मैं आपके ना थोड़ी सी रीडिंग स्किल्स भी चेक करना चाहता हूँ. जस्ट वांट टू चेक योर रीडिंग स्किल्स, दैट हाउ यू रीड एनी टेक्स्ट और एनी पैराग्राफ. ओके, दिस विल हेल्प मी टू आइडेंटिफाई दैट फ्रॉम वेयर आई शुड स्टार्ट टीचिंग यू. मतलब कि ये मुझे ये बताने जानने में हेल्प करेगा कि मुझे आपको कहाँ से पढ़ाना शुरू करना चाहिए, ये क्या चीजें आपकी वीक है. ओके, मैंने आपकी स्पीकिंग स्किल चेक कर ली, मैं आपकी रीडिंग भी करना चाहता हूँ. कोई इशू नहीं है, आई थिंक. Okay, so I think you can see my screen on your phone or laptop. आपको मिस No. You can't see my screen. Just a minute. Let me check. Okay, I just forgot to share my screen with you, and here we are. I think now you can see my screen. Yes. Okay, so can you please read these three paragraphs for me? Okay. Okay, पढ़ो फिर आप. Ashik Institute welcomes you to join our carefully designed basic English speaking course at our Spoken English Institute. We are committed. Committed to giving you a great and a different English learning experience with ensured With ensured results. results. Which other spoken English classes might struggle with, whether you wish to start learning English as a beginner or you are
executive, housewife. We have the right spoken English course for you, making you speak fluent English with with neutral accent guaranteed. guaranteed. One more paragraph, please. Yes. Our spoken English course is designed by experts at Let's Talk Specifically to meet the needs of people who struggle with English speaking skills, making a frustrating frustrating experience for both themselves and their listener. and the listeners. Very good, extremely nice. Okay, so I am going to read the same. भाव्या, मैं भी सेम लाइन ही पढ़ने जा रहा हूँ, और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप जो मैं पढ़ रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, और ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि एक्चुअल में कैसे रीड किया आपने। काफी अच्छा रीड किया, आपकी कोशिश काफी अच्छी थी, ठीक है, इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। ओके, बट आई एम गोइंग टू रीड द सेम एंड आई वांट यू टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं भी पढ़ने जा रहा हूँ, आप उसको देखो और समझने की कोशिश करो कि क्या डिफरेंसेस है। ओके Okay. So, ASIC Institute welcomes you to join our carefully designed basic English speaking course. At our Spoken English Institute, we are committed to giving you a great and a different learning experience with ensured results, which other spoken English classes might struggle with. Whether you wish to start learning English as a beginner or you are a student, executive, housewife, we have the right spoken English course for you, making you speak fluent English with neutral accent guaranteed. Our spoken English course is designed by experts and let's talk specifically to meet the needs of people who struggle with English speaking skills, making a frustrating experience for both themselves and the listeners. Furthermore, our spoken English classes will help you learn new English vocabulary, refine your English pronunciation, and make you communicate in real life situations. समझ में आया? ठीक है, आपको डिफरेंस पता लगा? ठीक है, आपने काफी अच्छा पढ़ा, ठीक है, बट जो कमियां थी आप में, मैं आपकी कमियां बता देता हूँ जिन्हें आपको दूर करना है। पहला कमी ये थी कि आप कुछ वर्ड्स पे अटक रहे थे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको ज्यादा इंग्लिश पढ़ने की आदत नहीं है, आप ज्यादा इंग्लिश नहीं पढ़ते हो, ठीक है। सही कहा ना मैंने? और दूसरी चीज, जब भी आप इंग्लिश हम पढ़ते हैं ना, जैसे हम कोई बुक पढ़ रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो कभी भी मन में मत पढ़िए, ठीक है। अगर आपको आपकी इस इंग्लिश को इम्प्रूव करना है ना, तो हमेशा उसे जोर जोर से पढ़िए, ठीक है। गलत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, गलती करके ही इंसान सीखता है। आप गलत पढ़ो भाव्या, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसे जोर जोर से पढ़ो, ठीक है। तो ये जो आप बीच बीच में अटक रहे थे, कुछ वर्ड को आप बोल नहीं पा रहे थे, ठीक है, ये आपकी कमी दूर हो जाएगी, समझ में आया? और दूसरी चीज ये है कि कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, ठीक है। अरे क्या ही फर्क पड़ता है अगर आप गलत बोल दोगे तो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सामने वाला हंसेगा, सिर्फ तो कुछ थोड़ा होगा, ठीक है। तो उसका नुकसान है, आपको तो प्रैक्टिस हो रही है ना, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आपकी लैंग्वेज में टोनिंग होनी चाहिए। टोनिंग से मेरा मतलब ये, अगर आपने मुझे ध्यान से सुना होगा, सुना था, तो आपने ये चीज नोटिस की होगी, कुछ वर्ड्स पे मैं अपनी आवाज को ऊंची कर रहा था और कुछ वर्ड्स पे आवाज को डाउन कर रहा था, ठीक है। या सेंटेंस के आधे पार्ट को मैं स्पीड में बोल रहा था और आधे पार्ट को मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा था, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं, ठीक है, तो एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। जो सामने वाला है, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसके सामने हम इंग्लिश बोल रहे हैं, वो उसका ध्यान कहीं और भटकने नहीं देता, ठीक है। और इंग्लिश बोलते वक्त, ये इंग्लिश का, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज बोलते वक्त इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आया? चलो कोई बात नहीं, ये सारी चीजें हम क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको गाइड करता रहूंगा, ठीक है, कहाँ पे आपने गलत पढ़ा है, कहाँ पे आपने सही पढ़ा है, इसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, मैं ये भी करूंगा, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए कि आपने ग्रामर पढ़ रखी है? कुछ कुछ मैं जान सकता हूँ कि आपने क्या क्या पढ़ा है या कब पढ़ा था?
फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड, अच्छा फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपने ग्रामर पढ़ी थी? फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में आपने ग्रामर पढ़ी थी? हाँ। ओके, और क्या क्या पढ़ा था आपने? कैन यू स्पीक अगेन? Sure, I am going to speak again. I just want from you to know what you just learned in grammar. आपने ग्रामर में क्या क्या पढ़ा था? लाइक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता है, नहीं पता है? आपको टेंसेस आते हैं, नहीं आते हैं? ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी है? कुछ कुछ। कुछ कुछ, चलो कोई बात नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको क्या क्या चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक जो कंप्लीट जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, कंप्लीट जो इंग्लिश है, उसमें मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, आपको क्या क्या सीखने की जरूरत है, और किसके बाद हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अब ध्यान से सुनना, जहां पे ना समझ में वहां पे आप मुझसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। ठीक है, जो पूरा कोर्स है वो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है भव्य। ठीक है, पहला फाउंडेशन लेवल है जो एकदम बेसिक है, एकदम जीरो लेवल से शुरू होता है। उसके बाद हम थोड़ा सा एडवांस पे चलते हैं, और एकदम थर्ड लेवल पे हम एकदम एडवांस लेवल पे चले जाते हैं। लाइक आप एकदम, जैसे मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहा हूँ, आप उस टाइप से बोलने लगोगे। ठीक है, जब हम एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे तो अब इन तीनों लेवल में आती क्या क्या चीजें हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारा फाउंडेशन लेवल है, तो फाउंडेशन लेवल में मैं आपको एकदम जीरो से बताता हूँ। लाइक वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, आपको ने पढ़ा होगा फर्स्ट सेकंड में। एबीसीडी में ए ई आई ओ यू जो होते हैं वो वोवेल्स होते हैं, बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो मैं उस बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा आपका कोर्स। ठीक है, और फिर हम आगे आगे धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें होती रहेंगी, हम आगे आगे उसको डीपली और एडवांस लेवल पे जाते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होती हैं, मैं आपको दोबारा बताऊंगा कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, उनका काम क्या है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद मैं आपको टेंसेस बताऊंगा। टेंसेस होते हैं काल, जैसे आप कोई भी बात कह रहे हो तो वो अभी कह रहे हो, या बीते हुए समय में कही जा चुकी है, या आगे आने वाले टाइम में आप कहोगे। ठीक है, तो उन सारी चीजों को बोलते हैं टेंसेस, और उनको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो सारी चीजें हम इसमें सीखेंगे। ओके, अब ये तो हो गया कि ग्रामर का पार्ट हो गया। ठीक है, फाउंडेशन लेवल में सिर्फ बेसिक ग्रामर आएगी। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग लेवल का, एकदम जीरो लेवल का। ठीक है, लेकिन सिर्फ ग्रामर पढ़ लेने से इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। ठीक है, काफी सारे लोग होंगे, ठीक है, इवन कि आपके फ्रेंड्स में काफी सारे लोग होंगे, या आपके पेरेंट्स के फ्रेंड्स में काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने ग्रामर तो पढ़ रखी है। ठीक है, लेकिन उन्हें इंग्लिश बोलनी फिर भी नहीं आती है। ठीक है, तो सिर्फ ग्रामर पढ़ लेने से इंग्लिश बोलनी नहीं आ जाती, हमें उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। और ग्रामर के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें हमें सीखने की जरूरत होती है। ठीक है, तो हम ग्रामर भी साथ में लेके चलेंगे, और जो बाकी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी साथ में लेके चलेंगे। अब जो बाकी की चीजें आ जाती हैं वो आ जाती है कि आपको कैसे स्पीक करना है, आपको ट्रांसलेशन करने तो आ गया, आपको किसी भी हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना तो आ गया। ठीक है, लेकिन उसको आपको बोलना किस सेंस में है। लाइक आप एक कहानी की तरह पढ़ सकते हो, जैसे मैं इसी इसी पैराग्राफ को पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं से नॉर्मली ऐसे भी तो पढ़ सकता हूँ। ठीक है, दोनों तरीके से मैं पढ़ के बता रहा हूँ। The foundation level spoken English course from AC Institute is perfect for students with a very little knowledge of speaking in English and the one who struggle to speak English in their daily life. ठीक है, एक सेंटेंस मैंने पढ़ा नॉर्मल, जैसे कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, पर अगर इसी सेंटेंस को मैं इस तरीके से पढ़ूं कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, तो मैं इसको इस तरीके से पढ़ूंगा। The foundation level spoken English course from ESIC Institute is perfect for students with a very little knowledge of speaking in English and the ones who struggle to speak English in their daily lives. Moreover, our spoken English classes are comprised of English conversations and short activities which include the practice of our everyday tasks like telephonic conversation, shopping, and basic etiquettes. The prime topic of this spoken English courses will be, डिफरेंस समझ में आया कि नॉर्मल पढ़ने में क्या होता है, और जब किसी से हम बात कर रहे हैं तो हमें कैसे बोलना है। Yes. हाँ, तो ये चीजें कोई भी ध्यान देना जरूरी, क्योंकि पढ़ तो देखो सब लेते हैं। ठीक है, पढ़ तो सब लेते हैं, लेकिन उसको इस तरीके से पढ़ा जाए कि सामने वाले से कनेक्ट कर सके, उसका ध्यान इधर उधर ना जाए, वो स्किल है, वो हमें सीखना पड़ता है, वो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है,
एंड आई विल आल्सो टीच यू फ्री स्पीच ऑन वेरियस टॉपिक। मैं आपको कोई भी टॉपिक दे दिया, लाइक जो भी करंट टॉपिक भी हो सकता है, आपको उस पर थोड़ी देर बोलना है, तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। अभी तो आप चलो छोटी क्लासेस में हो, जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे आपको आपके प्रोजेक्ट्स को लेकर प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, या इंटर या ग्रेजुएशन करने के बाद आपको जॉब के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी जो इंग्लिश होनी चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंट होनी चाहिए, एंड जो है आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाए तो आप उस पे एक अच्छा सा कंटेंट बना के किसी के भी सामने रिप्रेजेंट कर सको, ठीक है। अब आप कुछ भी हो, सपोज आप डॉक्टर ही बन गए और मैंने किसी बॉडी पार्ट के बारे में आपको अचानक से बोल दिया कि ठीक है आप मुझे हार्ट के बारे में जो है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं कि आप हार्ट के बारे में सब कुछ याद करके रखोगे, या दुनिया भर में लाखों टॉपिक आप सब चीज़ को सब कुछ याद करके थोड़ा रख सकते हो। तो आप में ये स्किल होनी चाहिए कि अगर आपको कहीं से कोई भी टॉपिक दे दिया जाए तो आप तुरंत उसको एक कंटेंट क्रिएट करके आप सामने वालों को बता सको। अंडरस्टैंड? Yes. हाँ, तो यहाँ पे हम वो चीज़ें सीखेंगे। रिटेन कम्युनिकेशंस में हम करते हैं, रिटेन कम्युनिकेशन ये है कि हम किसी से जब बात करते हैं रिटर्न, मतलब कि जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो या कोई मेल कर रहे हो, ठीक है? तो मेल में भी हम किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या रिटेन कम्युनिकेशन में आपकी एप्लीकेशन राइटिंग जो है एप्लीकेशन राइटिंग्स हो गए या लेटर राइटिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, एंड कंपोजिटिंग राइटिंग होती है कि आप कोई बुक लिख रहे हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। एंड आई विल आल्सो टीच यू हाउ यू कैन डू कन्वर्सेशन इन योर रियल लाइफ। आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, अपने घर में फैमिली मेंबर से बात करते हो, मम्मी पापा से बात करते हो, तो जो रियल लाइफ कन्वर्सेशन होते हैं, लाइक कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप डेली यूज करते हो, ठीक है, कॉमन सी चीजें, आप हाल चाल डेली पूछते हो, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग डेली बोलते हो, ठीक है, आपको खाने खाने की डिमांड आप डेली करते हो, या पॉकेट मनी की डिमांड अपने पेरेंट्स से डेली करते हो, तो ये जो डेली रियल लाइफ कन्वर्सेशंस है जो आप डेली यूज करते हो, वो आप कैसे करोगे, ठीक है। ये चीजें हम सीखते हैं फाउंडेशन लेवल में। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारा दूसरा लेवल है, थोड़ा सा एडवांस, फाउंडेशन से थोड़ा सा एडवांस। यहाँ पे हम ग्रामर का एडवांस पार्ट देखते हैं, ठीक है। अभी तक जो फाउंडेशन है एकदम बेसिक ग्रामर, कि मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, वगैरह वगैरह, इन सारे वर्ड्स को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। बट इंटरमीडिएट लेवल में एडवांस ग्रामर आ जाएगी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये काफी बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं, तो हाउ यू कैन ट्रांसलेट सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस, आई विल टीच यू दिस। ओके, and in this second level, intermediate level, you will be able to translate any paragraph, any story, and even if you want, then you can narrate the entire book. Okay, you can translate the entire book in Hindi or in English, whichever you want. Clear? ओके, एंड द एक्स्ट्रा टॉपिक विच इज नॉट द पार्ट ऑफ योर ग्रामर, जो ग्रामर का पार्ट नहीं है, जो हम करेंगे इसमें, वहां पे हम सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, ठीक है। प्रोनाउंसिएशंस को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो हम वो देखेंगे, पंक्चुएशंस क्या होते हैं, और आप अपनी इंग्लिश बोलने का डर कैसे हटा सकते हो। पब्लिक स्पीकिंग स्किल सेट के बारे में आपको बताऊंगा कि अगर आपको 1000 लोगों के सामने खड़े होकर बोलना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या आपकी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, किन चीजें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एंड आई विल आल्सो हेल्प यू टू डेवलप योर पर्सनैलिटी, ठीक है। आई विल हेल्प यू टू डेवलप योर पर्सनैलिटी, आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप कर सकते हो वो बताऊंगा, ठीक है। जॉब इंटरव्यूज अभी आपके काम की चीज नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा। जॉब इंटरव्यूज बेसिकली जब आप जॉब के लिए जाते हो तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपको किन किन चीज की प्रिपरेशन करनी चाहिए, इंटरव्यू में बैठने से पहले आपको और क्या करना चाहिए। लाइक आप किसी कंपनी के लिए इंटरव्यू के लिए बैठे हो, कंपनी वाले ने पूछ लिया कि आप मेरी कंपनी में काम क्यों करना चाहते हो, ठीक है, तो आप ये थोड़ा बोलो कि नहीं मुझे पैसों की जरूरत है, या मैं घर पे खाली बैठू इसलिए मुझे पैसे चाहिए, या मैं काम करने इसलिए मैं जॉब करने, ये थोड़ा बोलोगे, ठीक है। तो हमें ये चीज बोली जाती है कि आपकी कंपनी में ये अच्छी अच्छी चीजें हैं, यहाँ से मुझे ये सीखने को मिलेगा, ये करने को मिलेगा, ये मेरी ग्रोथ होगी, इस वजह से मैं आपके साथ जॉब करना चाहती हूँ, ठीक है। तो जॉब इंटरव्यू में बैठने से पहले किन किन चीजों की जरूरत है मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जब आप 12th या ग्रेजुएशन करने के बाद जब आप जॉब के लिए जाओगे, ठीक है, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। ओके, एंड ग्रुप डिस्कशंस करेंगे हम। ग्रुप डिस्कशंस होते हैं कि 3-4 लोग हम लोग कॉल पे रहेंगे, अगर आप ऑफलाइन क्लास के लिए आते हो तो 3-4 लोग यहाँ पे रहेंगे, किसी भी टॉपिक पर हम बात करें। जैसे अगर आप न्यूज़ देखते हो, अगर आपने कभी न्यूज़ पे देखा हो, तो ऐसे 5-6 लोग बैठ के एक दूसरे से बात नहीं करते रहते हैं, ठीक है, किसी न किसी टॉपिक पे डिस्कशन करते रहते हैं, ठीक है, तो हम वो करेंगे। इससे आपका एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस सब कुछ बिल्डअप होता है। ओके, एंड एसेंट को कैसे न्यूट्रलाइज करना है, आई विल आल्सो टीच यू दिस, ठीक है, कि आप कैसे एसेंट, जैसे मेरा एसेंट अलग है, ठीक है, अब किसी का जैसे कोई हरियाणा में रहता है तो उसकी हरियाणवी, उसकी
बोलचाल में जो लैंग्वेज में तो हरियाणवी झलक होती है, तो उसे आपको कैसे हटाना है, ठीक है, हम उस पे भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके एंड इसके बाद हम एडवांस लेवल पे चलते हैं। यहाँ पे ग्रामर नहीं है, ग्रामर सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल तक है। यहाँ पे उसके अलावा जो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, जो आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करता है, ठीक है, और जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को एक नए लेवल पे लेके जाता है। वहाँ पे क्या आ जाता है, वॉइस एंड एसेंट्स को इम्प्रूव करना, ठीक है, आप अपने एडम्स और फ्रेसेस को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। पब्लिक स्पीकिंग आ जाता है, मॉक टेलीफोनिक कॉल्स आ जाती हैं कि आपको अचानक से किसी का भी कॉल आ जाए तो आप उनसे कैसे बात करोगे। इंटरव्यूज हम लोग करते हैं, मेल्स लिखना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिसेस हम लोग करते हैं, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कितनी भी फ्लुएंसी आती हो, आप कितनी भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हो भाव्या, बट अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं, आप किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हो और आपका जो पॉस्चर है खड़े होने का या बैठने का वो अच्छा नहीं है, या आपके हाथों की मूवमेंट अच्छी नहीं है, ठीक है, तो इसका बहुत ही बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले पे या जिससे भी आप बात कर रहे हो, ठीक है, उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा और वो आपकी बातों को ध्यान से सुन ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसलिए बॉडी लैंग्वेज बेसिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। Okay, and I will also tell you how you can make telephonic conversations with clients or customers or the office communications, the person who is more superior than you, जो पर्सन आपसे ज्यादा सुपीरियर या कोई क्लाइंट है कोई कस्टमर है, तो आप उससे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कैसे कर सकते हो। ओके, और इसके बाद में मैं आपकी जॉब रिज्यूमे को भी अपडेट करने में हेल्प करूंगा। जब भी आप जॉब के लिए जाओगे तो पहले से करना तो मैं recommend करूंगा, पर ये सारी चीज़ें अभी आपके काम की नहीं है, अभी तो आप 6th क्लास में हो, ठीक है। जॉब वगैरह के बाद जब आप 12th वगैरह पास कर जाओगे तब आती है। ओके, और मैं ये भी बताऊंगा कि आप इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प करूंगा। अंडरस्टूड? Yes. ठीक है, नाउ टेल मी इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, if you have any question in your mind then you can ask to me. सर ये सीए या फिर इसके चार्जेस लगेंगे? Sorry, I didn't get you. आप प्लीज रिपीट करोगे, मैं सुन नहीं पाया आपको। भाव्या मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या बोला, प्लीज रिपीट करोगे। सर जो ये कोर्स है हाँ, वो कितनी चार्जेस है? देखो भाव्या, चार्जेस तो जिन मैम ने आपको फोन किया था ना वही आपको बताएंगे, और जो ड्यूरेशन है ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी चीजों को ग्रैब कर लेते हो। अगर आप 1 महीने में सारी चीजें सीख जाते हो तो कोर्स 1 महीने का है, बट अगर आपकी लर्निंग कैपेसिटी थोड़ी स्लो है, आप धीरे धीरे चीजों को कैचअप करते हो, तो जब तक आप सीख नहीं जाते तब तक आप कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन जब तक आपका पहला टॉपिक क्लियर नहीं हो जाता तब तक दूसरा टॉपिक स्टार्ट नहीं होगा। ओके ओके, तो ये कंप्लीटली आपकी कैचिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अब मैं आपसे बोल दूं कि 2 महीने बहुत है, ठीक है, लेकिन आप अगर धीरे धीरे चीजें सीख रहे हो, ठीक है, आपके दिमाग में चीजें नहीं आ रही हैं, तो 2 महीने में कैसे हो पाएगा। ये तो टोटल आपकी कैचिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है ना। आप चाहो तो 1 महीने में खत्म कर दो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो उसे साल भर भी लेके जा सकते हो। ओके एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो? सर जो डेली क्लासेस होगी वो कितने आवर्स की होगी? क्लासेस बेटा आपकी डेली होंगी 1 घंटे की, संडे ऑफ होगा, संडे ऑफ होगा, ठीक है। 1 घंटे की होगी वो क्या चीज? कितने टाइम की होगी, मतलब मॉर्निंग में, इवनिंग में, या फिर उस पर डिपेंड है? ये डिपेंड करता है कि आप फ्री किस टाइम पे हो। आपका भी तो स्कूल होता होगा, आई थिंक ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होती होंगी। यस हाँ, तो जिस टाइम पे भी आप फ्री हो आप मैम को बता देना और वो आपका वही टाइम शेड्यूल कर देंगी, ओके ठीक है। जिन मैम ने आपको ज्वाइनिंग की लिंक भेजी थी ना वही मैम आपको बता देंगे, आप उनको मैसेज कर देना, उनको कॉल कर लेना, फीसेस भी वही बता देंगे और टाइमिंग भी वही बता देंगे, ठीक है। सर जिस दिन क्लास नहीं ले पाए तो उस दिन की रिकॉर्डिंग आएगी? नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग नहीं आती है, रिकॉर्डिंग नहीं आती है। जिस दिन की क्लास मिस हो जाएगी या जो हो जाएगा वो मैं आपको नेक्स्ट डे रिपीट कर दूंगा, ठीक है। या किसी दिन जैसे आप अवेलेबल नहीं रहे, छुट्टियां नहीं मिलेंगी, छुट्टियां कोई इमरजेंसी काम है तभी मिलेंगी, जैसे तबीयत खराब हो गई या कहीं फंक्शन में जाना हो गया तभी छुट्टियां मिलेंगी,
ठीक है, या मुझे कुछ कुछ ही जरूर काम हो गया तभी छुट्टी होगी, नहीं तो क्लासेस डेली होंगी। और जो टॉपिक मिस हो जाता है वो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो मैं उसमें रिपीट कर दूंगा। Okay. हाँ, ओके, और पूछो आप। No. दैट्स इट, ये इतनी क्वेश्चन हैं आपके। हाँ. ओके, सो कैसा लगा आपको, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया, मतलब कि कुछ आपकी नॉलेज इंक्रीज हुई? Yes. क्लासेस कैसी, ये क्लास कैसी लगी आपको? Nice. ओके, थैंक यू वेरी मच। भव्या, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ आपको ये चीजें बताई हैं कि मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा और आप कहाँ कहाँ पे वीक हो, ठीक है। मैंने पहले ये आइडेंटिफाई किया कि आपके कौन कौन से पार्ट स्ट्रांग है, कौन कौन से पार्ट वीक है। उस बेसिस पे मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या चीजें सीखने की जरूरत है, या मैं आपको क्या क्या चीजें सिखाऊंगा, ठीक है। मैंने भी आपको कुछ भी सिखाया नहीं है, ठीक है, वो हम क्लासेस में देखेंगे। मैंने अभी सिर्फ आपको एक डेमो सेशन दिया है कि आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिलेंगे। Okay. ओके, हाँ, तो अब आप आई थिंक मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मैम से पूछ लेना, या मुझसे कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो, या अगर आपको बाद में भी मुझसे बात करने, कोई क्वेश्चन पूछना, मुझसे बात आप करना चाहते हो तो आप मैम से बोल देना, वो मुझसे कनेक्ट करा देंगे आपको दोबारा। Okay. Thank you, sir. थैंक यू बाबा, टेक केयर, बाय बाय।